Hi everyone, my name is Naika Agarwal. I am founder of Connect. आज हमारे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धि नंदा. So she is an Ayurveda nutrition consultant. She combines modern nutrition science with Ayurveda nutrition science together to give results for any condition, any problem. She doesn't believe in dieting, but strongly recommends and strongly believes in changing the lifestyle and food as per Ayurveda concept, such that we all stay healthy and fit for long time. And in case if you have any medical conditions such as diabetes, BP, high cholesterol, high uric acid, thyroid problem, irregular menses, PCOD or PCOS, kidney disease, liver disease, you can make remarkable changes in that too by combining her treatment along with medicines. What is her USP? Let's talk about her USP. Her USP is to give Ayurveda remedies along with lifestyle and food modification to heal you from within as per your body type and medical condition. So welcome, Dr. Riddhi Nanda. Thank you, ma'am. Thank you so much. We are so proud to have you as a registered member in Connect. Thank you so much. It's also my pleasure to be in such a beautiful platform. आप लोगों से मैं अब कनेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी. कनेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. करीबन 1000 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया हमारे, एंड करीबन 60,000 फॉलोअर्स हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. सो दिस आई एम रियली प्राउड ऑफ, बिकॉज ये हमने 3 साल में ही हमने अचीव किया है. और हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने करीबन 7-8 करोड़ का बिजनेस किया है 3 साल में. So that is an achievement I'm really proud of. So over to you, Dr. Riddhi Nanda. The platform is all yours, and we are eager to hear about PCOD, PCOS, and uterine fibroid. ये नाम बहुत भयानक लग रहे हैं. आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं. Sure, definitely, ma'am. Thank you so much for giving me this platform. PCOD, PCOS, and uterine fibroids. पहले के जमाने में कभी हमने पहले ना सुने हुए ऐसे प्रॉब्लम्स कभी नहीं सुने थे हमने. एंड आजकल हर छोटे गर्ल्स से लेके, इट स्टार्ट्स एनीवेयर बिटवीन 15 to 17 इयर्स ऑफ एज से लेके ओल्ड एज तक. सो पहले फाइब्रॉइड्स बहुत लेटली आफ्टर 40s 50s के बाद आते थे, और आजकल छोटी एज में भी फीमेल को फाइब्रॉइड्स होना शुरू हो गए हैं. पीसीओडी पीसीओएस इज सो रैम्पेंट. एज पर द रीसेंट रिसर्च, 1 girl out of every 3 to 4 girls is either having a PCOD or PCOS problem. And people are really not sure कि ये क्यों होता है, कैसे हो गया, और इसका परमानेंट क्योर क्या है. So we just get stuck in that vicious cycle on and on and on. So here I am today talking to you about PCOD, PCOS and uterine fibroid. ये जो गुत्थी है उसको मिलके आज सुलझानी है, because ये biggest platform है Connect पे, जहाँ से more than, like Naika ji say, कि more than 60,000 females have been connected. And my motive is that only, that I want to educate every female about it actually. So guys, PCOD and PCOS. Some of the patients ask me, what is the difference between PCOD and PCOS? And most of the females think, हाँ ये PCOD and PCOS almost same है. It's not actually. So PCOD, which is polycystic ovarian disease, and PCOS, it is polycystic ovarian syndrome. सो शुरू के 3 लेटर सेम है, डी और एस में डिफरेंस है. नाउ पीसीओडी एंड पीसीओएस के अगर साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो इट्स नॉट मच ऑफ द डिफरेंस. इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, वजन बढ़ जाना, एक्ने का इश्यूज होना, फेशियल हेयर ग्रोथ आना, बहुत ज्यादा लेथार्जी फील होना, मूड स्विंग्स होना. देयर आर लॉट ऑफ सेम साइंस एंड सिम्टम्स व्हिच आर हैपनिंग. But yes, unless and until you go to a gynecologist, you would not be able to figure that out, whether it's a PCOD or PCOS.
If we don't go too much into detail technically, but yes, like थोड़ा अगर मैं लेमन टर्मिनोलॉजी में आप, तो पीसीओडी एंड पीसीओएस क्या है? इट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर ओवरीज. सो ओवरीज में सिस्ट हो जाना, छोटी 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 गांठें हो जाना, मल्टीपल सिस्ट हो जाना, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज इन्फ्लेम्ड हो जाती है. आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ओवरीज इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, यहाँ पे छोटी छोटी सिस्ट हो गई है, एंड देन at the end they will to diagnose कि whether it's a PCOD or PCOS. So PCOD, it's a beginning stage जहां पे it is only related to ovaries, versus PCOS, it is the metabolic disease, यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम, आगे जाके हार्ट रिलेटेड कंडीशंस. पीसीओएस के केसेस में इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो आगे जाके ये सारे मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज नाउ इट्स अ मेटाबॉलिक थिंग. So PCOD is the beginning stage versus PCOS is the advanced stage. That's how we can like correlate. उसके लिए बहुत ज्यादा hormonal रिपोर्ट्स करवाने को अलग अलग बोलते हैं, FSH, LH, TSH, all that thing, and then gynecologist figure that out. तो हमें क्या समझने की जरूरत है और हमारा क्या रोल होता है जब कोई भी फीमेल को पता चलता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है, राइट? सो पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है, सो गायनेकोलॉजिस्ट अपना काम करेंगे. इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीसीओडी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेकमेंड की जाती है, विच आर द हार्मोनल पिल्स, जो आपके इरेगुलर पीरियड्स को टाइम टू टाइम ला सकते हैं. बट द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप वो मेडिसिन लोगे तब तक आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे. एज सुन एज यू गिव अप ऑन द मेडिकेशंस, 2 से 3 महीने में वापस इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है. सो ऐसा क्यों होता है? The reason is PCOD and PCOS are completely a lifestyle problems. It is not something कि हमने inherit किया है. PCOD is completely lifestyle disease. So lifestyle disease यानी lifestyle की गड़बड़ी से आया हुआ problem. So if you logically think कि जो problem lifestyle की वजह से आया हुआ है, वो लाइफस्टाइल को बिना चेंज किए हुए सिर्फ मेडिसिन से अगर आप फिक्स करना चाहते हो, ट्रीट करना चाहते हो, आइडियली इट्स नॉट पॉसिबल. इन टुडेज मॉडर्न लाइफ स्टाइल, you know, more than 90% of the problems are lifestyle problems. So क्या करना है? You just have to modify your lifestyle such that your PCOD can be cured completely. Yes, you've heard me right. PCOD can definitely be cured. So PCOD is a completely reversible disease. उसको हम complete reverse कर सकते हैं, versus PCOS को completely reverse नहीं कर सकते. उसका management करना होता है ताकि आगे जाके आपको कोई भी metabolic disease such as diabetes, blood pressure, thyroid problem, ये सब कुछ ना हो जाए. तो उसके लिए क्या करना है? लाइफस्टाइल चेंजेस. यानी सो व्हाट इज लाइफस्टाइल चेंजेस? सो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी लाइफस्टाइल में है, पीपल डोंट नो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट कैसे लाइफस्टाइल. सबको पता है कि न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है डाइट देना, बट इन टुडेज लाइफ सबको लगता है डाइट यानी घबरा जाते हैं, भूखा रहना, डाइटिंग करना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करना. जी नहीं, एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है जो भी मेडिकल कंडीशंस में या जो भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हो, पहले तो उसका रूट कोज फिगर आउट करो. वो रूट कोज फिगर आउट करके आपकी लाइफस्टाइल इस हिसाब से मॉडिफाई करो ताकि आप जो प्रॉब्लम में फंसे हो उसमें धीरे धीरे बाहर आ जाओ. सो लाइफस्टाइल के 5 फैक्टर्स, very important to understand 5 factors of lifestyle. Yes, first factor is आपका खाना. So in today's era people think कि जो भी घर का बना हुआ है वो सब कुछ हेल्दी है,
जो बाहर का है वो सब कुछ अनहेल्दी है. In a way it is right, in a way it's wrong. There is a thin line. Why? Because आजकल हम घर पे भी जो बना रहे हैं, it is highly refined. Refined? How is it? Refined oil, refined sugar, refined salt. वहीं से ही तो हमारे दिन की शुरुआत होती है. So more you are eating the refined food, more you are eating freeze का खाना, एल्यूमिनियम में बना हुआ खाना, नॉन स्टिक में बना हुआ खाना, सुबह का बनाया हुआ रात को रीहीट करके खाना, या रात को बनाया हुआ खाना दूसरे दिन रीहीट करके खाना. These are all the major challenges that we all are facing in the modern lifestyle. So ये सारे problems की वजह से क्या हो रहा है कि we are not getting the proper nutrients from our food. Nutrients यानी vitamins, minerals, protein, carbohydrates. I think it got stuck. हाँ जी, हाँ जी, Yes. अभी चल Am रहा I है. audible now? Please continue. Yes, yes. All right. So well balanced nutrients are very important to get from the food. बट हम सोचते हैं कि अगर विटामिन मिनरल्स चाहिए तो हमें सप्लीमेंट्स यानी टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी. जी नहीं, हमारा खाना ही हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की क्षमता रखता है. बट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ which we are losing lot of nutrition from our food even at home. सो हमारा खाना बहुत मोनोटोनस हो गया है. सुबह दोपहर रात को बस गेहूं चावल ही हम खाते रहते हैं. देयर इज नॉट मच वेराइटीज. Not varieties in the sense of fancy food, but varieties in the sense of जहां से हमें most of the nutrients मिल जाए. So all in all हमारा खाना nutrients value में बहुत down चला गया है compared to जिस हिसाब से हमारी lifestyle है. Stress level. Stress is the biggest aspect because of which, there are a lot of imbalances which are happening in our body. स्ट्रेस होता है 50% और हमें फील होता है 80%. ऐसा भी होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. अगर हम पहले के जमाने के लोगों को देखें तो कभी उन लोग को तो कहीं पे पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रोइड ये सारे इश्यूज नहीं थे. हमें क्यों है? Because they were having a very disciplined lifestyle compared to what we are having right now. So physical activity जहाँ पे नहीं होती है उसकी वजह से what happens, हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में अच्छे से रिलीज ही नहीं होते हैं. इसलिए जो स्ट्रेस छोटा सा होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है. तो स्ट्रेस ज्यादा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, खाना है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज उसकी बहुत डाउन हो चुकी है. देन सबसे बड़ा हमारा सोने का टाइम एंड सुबह उठने का टाइम. इम्बैलेंस सर्काडियन रिदम, दैट इज इम्बैलेंस बायोलॉजिकल क्लॉक. कुदरत ने हमारे बॉडी को बहुत तरीके से बनाया है. हमारा जो बॉडी है वो सन के साथ रिदम में काम करता है. when the sun rises, your metabolism rises. When the sun sets, the metabolism slows down. तो अगर हम रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, 1-2 बजे सो रहे हैं, imagine who is disturbing that biological clock? We ourselves. So रात को नेटफ्लिक्स देख रहे हो, रात को अमेजोन प्राइम देख रहे हो, तो वो चीज सुबह जल्दी उठ के भी हो सकती है. अब जो काम रात को कर रहे हो वो सुबह जल्दी उठ के भी होता है. whatever it is, right? So we ourselves are disturbing the body का normal rhythm. रात को जागने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ता है एंड बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी एंड पीसीओएस का बर्थ होता है. सो पीसीओडी एंड पीसीओएस में डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं. सो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं? अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ योर इम्बैलेंस लाइफस्टाइल. सो यही 5 फैक्टर्स हैं ऑन एंड ऑफ. And fifth factor is not having a proper water intake. So either we are drinking too much of water or we are drinking not much of the water. We don't know how to drink. We don't know how to eat. So basic fundamentals, the fundamentals of this body
हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सारे डिजीज लाइफस्टाइल डिजीजेज ही है, फ्रॉम बिगिनिंग लाइक कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी से लेके कैंसर तक के सारे प्रॉब्लम्स आर अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. And then what we do up for that? We are taking medicines. What is medicine? Ultimately, it is a chemical. We are putting chemicals to our body and making sure कि ये जो भी सारे problems है वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक वहीं पे रहे. That's what we are doing. PCOD है, लाइफ टाइम के लिए वी कीप टॉकिंग अबाउट इट. मेरे को पीसीओडी है इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा पीसीओडी है इसलिए वेट गेन हो रहा है. पीसीओडी है, वेट गेन होता है, अंडरस्टूड. नाउ वन ऑफ द अनदर मिथ इज कि अगर वेट लॉस करते हैं तो पीसीओडी ठीक हो जाता है. Yes, when you go to a gynecologist will, if the female is overweight, gynecologist will always give a advice कि weight loss कर लो. But ये आधी अधूरी एडवाइस से पीपल आर गेटिंग मिसलीडेड. सो फीमेल्स को जब लगता है कि हाँ मैं 10-15 kg वेट लॉस कर लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. इन अ वे इट इज ट्रू, इन अ वे इट्स नॉट. व्हाई? बिकॉज आप वेट लॉस कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर आपका पीसीओडी क्योर होगा या और बिगड़ेगा. सो वेट लॉस क्रैश डाइट से भी होता है. खाना कम कर दो, खाना बंद कर दो, कोई एक डाइटिंग पे चले जाओ, कीटो डाइट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हर्बल लाइफ कर लो. देयर आर सो लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट. एक महीने में 10 किलो कम कर सकते हो आराम से, बट वो जो वेट लॉस होगा वो वाटर लॉस एंड मसल लॉस होगा. तो वाटर लॉस एंड मसल लॉस जब करते हो बॉडी में क्राइसिस और बड़े. अल्टीमेटली वेट क्यों गेन हुआ? हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से. और हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों हुए? आपकी इम्बैलेंस लाइफस्टाइल की वजह से. एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग टू क्योर इट? You are just losing weight. So ultimately, you should not be losing muscle weight and water weight, but you should be losing fat weight. But हमें तो बस नंबर कम दिखने चाहिए. यूपी मेरे 2 दिन में 2 kg चले गए. यस, एक महीने में 10 kg वेट लॉस कर लिया. Right now you are being very happy about it, but wait till another 3 to 4 months. वो गया हुआ वजन डबल स्पीड से आएगा और जो 10 kg गया है ना वो 15 kg बढ़ के आएगा. क्यों? बिकॉज आपने बॉडी में क्राइसिस खड़े किए हैं, बॉडी की रिदम को और अपसेट कर दिया है. आप जैसा सोचते हो बॉडी ऐसा काम नहीं करता है. बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग वो सुप्रीम नेचर ने किया है. उसकी रिदम के साथ हमें रिदम मिलानी होगी. वो हमारे साथ रिदम नहीं मिलाएगा. सो व्हेन you sync in your lifestyle with the sync of nature, you are healthy, fit for long time. जैसे हमारे ancestors थे 70-80 years तक वो healthy, fit and fine थे. कभी भी उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था. No surgeries, nothing. Everything was fine. But now छोटी छोटी उम्र में, the youngest case I have is a girl who is 16 years old. She has a complaint of hypothyroidism, and within 3 months we could reduce her dosage. How? Not the magic. I just changed her lifestyle and food modification. That's it. So the crisis can happen as early as we can't even think of. I have the youngest case where the boy is only 7 years old. 7 years old में उसका अभी वजन है 58 kg. कैसे हुआ? He didn't, he was not born with such a weight, but because उसको लाइफस्टाइल उस हिसाब से दी गई है, खाना इस हिसाब से दिया गया है. So we are at the reasons, and all we need to do is we need to take a responsibility and we need to fix it, rather than taking medicines for every little thing. गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डॉक्टर के पास भागते हैं या फिर इनो ले लेते हैं, सोडा ले लेते हैं, थम्स अप ले रहे हैं. They're just fixing, but nobody is thinking of permanent cure.
Wake up, guys. It's a time to go for the permanent cure. And permanent cure एक ही चीज से possible है, that is changing your lifestyle. That's it. And a nutritionist can help you to do that. आप 9 to 6 जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके ये कंसर्न्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का काम ही यही होता है, आप जहां पे फंसे हो वहां से आपको उठाना. So rather than running to a doctor all the time, run to a nutritionist to fix your life and to fix your health. So PCOD is a completely reversible disease. I have a lot of case studies within 3 months only. Yes, within 3 months. Before and after की sonography करवाते हैं हम, and then we have a lot of evidence. On online platform, I would not be able to show the reports because it is under the confidentiality. But any of you want to see the evidence कि कैसे PCOD ठीक हो गया, give me the reports, show me the evidence. I can show n number of cases. एंड साइंस भी यही कहता है. जो पीसीओडी का हम लोग कंप्लीटली रिवर्सल करवाते हैं, whereas PCOS, like I said, it's not completely reversible problem. क्यों? क्योंकि PCOS के रूट में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स, कहीं ना कहीं हेरिडिटरी फैक्टर भी रहा होता है. अगर मम्मी को प्रॉब्लम होता है एंड डॉटर वो इनहेरिट करती है, तो वो बहुत छोटी उम्र से उसको पीसीओएस है, एंड वो पीसीओएस का लाइफ टाइम तक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत छोटी सी उम्र में बड़े बड़े डिजीज हो जाते हैं एंड आगे जाके इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. वी ऑल नो आजकल सारे एरिया में इतने ज्यादा इनफर्टिलिटी क्लिनिक ओपन हो रहे हैं, आईवीएफ क्लिनिक्स. क्यों? बिकॉज females are having so much of hormonal imbalance. So ये डिस्टर्ब लाइफस्टाइल तो है, उसके ऊपर से हाँ फीमेल ने स्मोक करना शुरू कर दिया है, अल्कोहल कंजप्शन शुरू कर दिया है, एंड ऑन डेली बेसिस somehow or the other हम लोग डेड फूड डाल रहे हैं. Yes, you have heard me right, dead food. What is dead food? डेड फूड यानी जो चीज को मिट्टी में डालो और उसका पौधा नहीं बनता है या वो एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं हो सकता, वो सारी चीजें डेड फूड है. फिर वो मल्टीग्रेन ब्रेड हो, होल व्हीट ब्रेड हो, रागी कुकीज हो, एमरंथ कुकीज हो, ओट्स कुकीज हो. बिकॉज मार्केट में तो आपको कुछ भी सेल किया जाता है हेल्थ के नाम पे, बट देयर इज आइडियल बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है आयुर्वेदा में. जो चीज प्राण शक्ति से भरपूर है, लिविंग है, वही आपको लाइफ दे सकती है. अगर आप खाखरा, ममरा, बिस्किट, गाठिया ये सारे ड्राई स्नैक्स पे जी रहे हो, once or twice, or you start your day from the light breakfast which is खाखरा, ममरा, biscuit or anything, these are all the dead food. It has no प्राण शक्ति. So ऐसा खाना क्या करता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा रहा है, एंड जब टॉक्सिन्स पाइल अप होंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है. अल्टीमेटली you would be ending up at the PCOD or PCOS. So बहुत important है, if any of the females are having irregular periods, a complaint of facial hair growth, severe hair fall, feeling too much lethargic, tired, exhausted, too much of mood swings, feeling very angry, irritated, frustrated, a lot of symptoms, then you should first get diagnosed that what is it, why it is happening, and the person who can help you is no one else than the nutritionist. But yes, if it is severe PCO case, we need a combined approach. So gynecologist would do their job and nutritionist would do their job. Ultimately, it's 100% solution. So PCOD and PCOS को अगर दोनों में से कोई भी टर्म में आप फॉल करते हो तो उसको निग्लेक्ट मत करिएगा. यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज वही चीजें आगे जाके बड़े बड़े डिजीज में कन्वर्ट होगी, राइट? सो डो नॉट वेट
take an initiative for your own self. No दवाइयाँ can cure your PCOD or PCOS. Coming back to the fibroid, uterine fibroids, yes, बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है आजकल, और पहले के जमाने में ये एज रिलेटेड इशू हुआ करता था, बट आज के जमाने में बहुत छोटी छोटी उम्र में भी ये फाइब्रॉइड्स होना शुरू हो गया है. सो व्हाट इज इट? सो व्हाट इज द फाइब्रॉइड्स? सो फाइब्रॉइड्स यानी हिंदी में बोलते हैं रसोली, छोटी छोटी, आई मीन द गांठ, राइट? बट ये कोई कैंसरस रसोली नहीं है या कैंसरस ट्यूमर नहीं है. बट ये क्यों होता है बिना जाने? व्हाट वी आर डूइंग इज, इन एलोपैथी व्हेन द डॉक्टर डायग्नोज कि आपको फाइब्रॉइड है, they would always suggest either to go for myomectomy और hysterectomy. So यही दो मेनली इलाज है. So कभी कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं तो there are not much of the symptoms people would have initially, female would have. So पहले तो पता ही नहीं चलता है, but ultimately there are lot of signs and symptoms as the fibroid goes bigger. So जैसे irregular periods या बार बार periods आने, या फिर बहुत ज्यादा पेन होना during menstruation, this is the biggest sign. But 4 सेंटीमीटर से कम होते हैं तब तक एलोपैथी साइंस में उसका ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं किया जाता. When it grows bigger, so yes, to seek a treatment you would have to wait कि कब मेरा फाइब्रॉइड बड़ा हो जाए और मैं उसको मेरे बॉडी में से बाहर निकालूं, बिकॉज उसका ना ही ट्रीटमेंट है एलोपैथी साइंस में और ना ही उसका कोर्स पता है. दे से इट्स अननोन. एंड ये जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते अदर देन अ सर्जिकल रिमूवल. सो या तो आप यूटेरस को ही रिमूव करवा दो, दैट्स कॉल्ड हिस्टेरेक्टमी, या मायोमेक्टमी व्हिच इज फाइब्रॉइड रिमूवल. सो एक बार फाइब्रॉइड रिमूव करने के बाद क्या होगा? It will happen again and again and again, and ultimately इतने ज्यादा फाइब्रॉइड्स, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो जाने के बाद, and of course when you are done with having kids, then ultimately doctor would say now you can go for the hysterectomy. So yes, then you are removing your uterus because अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है ऐसा लगता है. बट थिंक लॉजिकली, भगवान ने जो भी ऑर्गन दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर रिमूविंग एनी ऑफ द ऑर्गन, उसका बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. एंड आपने काफी बार सुना होगा कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बाद फीमेल्स कंप्लेन कि मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन होता है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो रिमूव करवाना तो कोई क्योर नहीं हुआ. आज यूटेरस में फाइब्रॉइड है, यूटेरस रिमूव करवा दिया. कल ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड आएगा, ब्रेस्ट रिमूव करवा दोगे. फिर गोल ब्लैडर, पैनक्रियास, कितने ऑर्गन्स हम रिमूव करवाएंगे? दैट्स नॉट द क्योर. रादर वी शुड फोकस, थिंक वंस कि ये फाइब्रॉइड्स हो क्यों रहे हैं. द प्रॉब्लम इन टुडेज एरा, वी ऑल आर ट्राइंग टू फिक्स इट with the fast thing. फटाफट उसको बस कंप्लीट करो. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जल्दी से दवाइयां दे दो ताकि बस मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊं. बट फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस, these are such problems जिसमें आपको काम करना पड़ेगा. दवाइयों से या सर्जिकल रिमूवल से काम नहीं बनेगा. सो फाइब्रॉइड्स क्या है? आइडियली इन आयुर्वेदा लैंग्वेज दे से दैट कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा छोटे छोटे चैनल्स है, उसमें से एंजाइम्स, हार्मोन्स, सब कुछ फ्लो करता रहता है. एंड कहीं ना कहीं से अगर टॉक्सिन बिल्डअप शुरू हो गया तो धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में गांठ बन जाएगी, जिसकी वजह से वो जो चैनल में फ्लो हो रहा था, फ्लॉलेस फ्लो हो रहा था, अभी वो स्टॉप हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत बड़ा फाइब्रॉइड बन गया. वहां पे हिंड्रेंस आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. तो फाइब्रॉइड्स को कंप्लीटली
आपको पहले उसका रूट कोज आपकी लाइफ में जानना पड़ेगा। सबकी लाइफ में अलग अलग रूट कोज होता है। किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो भी ब्लॉकेज हो सकता है एंड फाइब्रॉइड हो सकता है। किसी का जंक फूड कंजप्शन, लाइक आई सेड कि डेड फूड कंजप्शन, डेड, वी आर ईटिंग डेड ऑल द टाइम, तो वी आर मेकिंग श्योर कि लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, हाई लेवल ऑफ शुगर, हाई लेवल ऑफ सोडियम, सब कुछ ऑन डेली बेसिस जा रहा है। दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ फाइब्रॉइड। उसके सामने फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है, सोने उठने का कोई ठिकाना नहीं है, we don't have a disciplined lifestyle. Again, that's the same thing, same root cause as the PCOD, PCOS. बट हम बिना रूट को समझे बस ट्रीटमेंट की तरफ भाग दौड़ करते रहते हैं and there is no end to it. You end up losing your organs. So guys, wake up. Rather than losing your organs, what you should be working on is you should be working on the root cause. बहुत सिंपल है, जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज फिगर आउट करो और उसको जड़ से खत्म करो। यही एक काम होता है न्यूट्रिशनिस्ट का। So what I do, I help people to figure out the root cause of your problem. Yes, that happens in my first consultation. So I sit with the patient for 1.5 hours. 1 to 1.5 hours. What we do, we take a thorough history to figure out the root cause of any problem, and बस लग जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट में, which is called the internal healing. ये ट्रीटमेंट में हम कोई सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर, कोई भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। But like Naika ji said, my USP is to give Ayurveda remedies. वो रेमेडीज जो हमारे ग्रंथास में लिखी गई है, एंड आयुर्वेदा साइंस जो 5000 years पुराना है, जो हमारे ऋषि मुनि रिसर्च करके गए हैं, सारी चीजें मेंशन्ड है। So I combined my therapy with that Ayurveda remedies. Along with that, I design your lifestyle and food modification such that आपका root cause treat हो जाए, and then you're through with it. So that's simple. That's how the simplest is that. But गोल घूमते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, एंड बीमारी के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के शिकार होते चले जाते हैं. So rather than falling into wrong trap, you should be taking the responsibility of your own problem and just work on it. Very, very simple. So PCOD है या PCOS है या uterine fibroid है या diabetes है या blood pressure है या thyroid या cholesterol, fatty liver, kidney disease, cancer, anything and everything can be managed or reversed only and only with the lifestyle and food modification. So take a responsibility and work on it. Thank you so much, Naika ji, for giving me this opportunity. Right? I would love to hear questions from any of the people or from you, if in case, Naika ji, you have any questions. Definitely, even I have questions, and I can see that जो देख रहे हैं viewers, You should be taking the responsibility कुछ questions modification. एक second. So take the responsibility. So yeah, I'm just looking at the questions जो response है. कविता मालवी जी ने पूछा है, what diet we should take after 3 months of diet is over for PCOD and ovarian cyst. Sorry, could you please repeat the question? What sort of diet we should take? After 3 months of diet is over for PCOD and ovarian cyst. So if in case they are consulting me, that's what they mean? Like 3 months के treatment के बाद? That's what I think. Yeah, so 3 months, okay. So because we talked about it, okay, like I reversed PCOD in 3 months, right? So what happens in this 3 months, we
teach you how to fish rather than आपको रेडीमेड फिश दे देना. मतलब आपको इतना इंडिपेंडेंट कर देना कि you will be able to manage. You know कि मुझे इतने ये टाइम पे सो जाना चाहिए, ये टाइम पे उठना चाहिए, मुझे सुबह का नाश्ता कैसा करना चाहिए, मेरी खाने की पैटर्न कैसी होनी चाहिए. Then you are independent. After 3 months, you would not have to seek opinion or to go on a YouTube and seeking a different videos. कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है. For sake of information, you can watch, no problem. But you would not be a confused person. कि ये मुझे हेल्प कर सकता है, ये मेरा PCOD ठीक कर सकता है. So once it is cured, now you're आपने वो लाइफस्टाइल पी ली है, आपको वो नॉलेज हमने दे दिया है. So देखो खाना तो हम सब खाते हैं, सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. We don't say कि नहीं अभी आपको कभी जंक फूड नहीं खाना है. I tell my patients every Sunday go out and eat, enjoy, no problem. But Monday to Saturday you should be having a disciplined lifestyle. So disciplined lifestyle जहाँ पे मैंने 5 factors की बात करी है, ये 5 चीजें आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इनकलकेट करना सीख गए होगे 3 months में, then there is no diet. Anyways, for 3 months I don't give any diets. Like Naika ji said in the beginning, I don't believe in any random diets or dieting. कि PCOD का ये diet, weight loss का ये diet, फलाना diet, no diet. हमारे ancestors diets नहीं करते थे. Because आजकल लोग diet को different terminology की तरह से देख रहे हैं. No, all you need to understand is the balance. कि हमारा खाना ऐसा तो कैसे लेंगे कि सारे न्यूट्रिशंस बैलेंस्ड वे में मिल जाए. So that's how, so my job is to teach you, to make you independent rather than to make you dependent, right? So no diets after 3 months. Okay. So Kavita Asatwal is asking, what should we eat for healthy diet and routine life? Good question. So definitely a lot of people are confused कि routine life में क्या खाना चाहिए. See, food wisdom हम लोग भूल गए हैं. So it depends, it varies season to season. So जैसी season वैसा ही हमारा body के ऊपर उसका impact होता है. So winter में अलग खाना, summer में अलग खाना, monsoon में अलग खाना. For example, अभी winter चल रहा है, हमारी वाता है ना कफ प्रकृति बहुत imbalanced हो जाती है. इसलिए lot of people gain weight into winter because कफ प्रकृति बढ़ जाती है. And lot of people face lot of gas, acidity, constipation के issues also in the winter. So there are lots of problems which you are facing because of the imbalanced diet pattern. So diet yani healthy, well balanced nutrition which you should be getting out of your food. So every 2 hours eating is a very good pattern if it suits your body. Minimum 2 fruits a day you should be consuming, to making sure that you are getting enough vitamins and minerals. Making sure that you are taking legumes, dal, pulses, paneer. Not everybody can have a paneer. For example, PCOD or thyroid case may will restrict all sort of milk and milk products. So it varies person to person. Drastically it varies. And when there is a person who is underweight, there is a person who is overweight. So there are a lot of different criteria. किसी की वात प्रकृति बढ़ी हुई है, किसी की पित्त प्रकृति बढ़ी हुई है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है. So it would be very not, I would not be able to tell superficially कि यही खाना चाहिए, but it should be the balanced way. And if you have further questions, you can definitely take my consultation and figure it out. Dharna Joshi पूछ रही है, ma'am, where is your clinic located? It's in Science City. So I'm located in Science City, the Motherhood and Midas Touch Hospital. I work with 20 doctors and I run my OPD over there. I do online counseling also. So in this pandemic, we have started giving online counseling and you can meet me in person also. Okay. Shaili Patel is writing, I have heavy periods since I got my periods since 6th grade. And I have low HP hemoglobin probably. But otherwise, I have no issues in uterus at all. No BP, no thyroid, and I have one baby too. Getting not a reason for low hemoglobin.
and later she has written even no acidity and no gastric issue also. So how should become normal periods happen? So there can be a lot of reasons. If she has inherited this from her mother, like you can ask your mom if she had the same issues. If not, this is something related to your childhood. So childhood का आपका so birth weight, अगर किसी का birth weight underweight I mean like low birth weight होता है, तो वो females को ये problems हमेशा रहती है. Other than that, अगर childhood में you have been a शिकार of like you have been a case of malnutrition, यानी अपने childhood से ही बहुत ज्यादा packet food consumption, Bournvita, chocolates, ice cream, ये सब कुछ अगर शुरू हो गया है, तो भी उसका impact आपके periods पे होता है. And like you have been saying कि you are not able to figure out the root cause of the low hemoglobin because you are menstruating so much, right? You are losing your blood and ultimately you are not able to recover it. So what you have to do is, see, hemoglobin 4 चीजों से बनती है, not just iron, folic acid, vitamin B12 and protein. So we'll have to first figure out कि ये क्यों हो रहा है, and with sitting with you for 1 to 1.5 hours, then and then I'll be able to figure out the root cause of the same, right? So it's a बहुत कम detail आपने दी है, no doubt I understood that आपको और कोई problem नहीं है, but जो उसका रूट कोज आपकी लाइफ में ही कहीं पे पड़ा हुआ है. सो अ न्यूट्रिशनिस्ट कैन हेल्प यू टू फिगर आउट द रूट कोज ऑफ द सेम. ओके, सुपर. अच्छा, आपकी बातों से मुझे लगता है कि हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, पीडियाश्योर ये सब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है बच्चों के लिए. इज इट ट्रू? बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है. बिकॉज इफ यू रीड द इंग्रेडिएंट्स, मैं 2 टाइम सो दैट इज व्हाट इज अपने बच्चों को पीडियाश्योर. सो हम हमारे बच्चे को 2 टाइम पीडियाश्योर या बॉर्नविटा या माइलो या हॉर्लिक्स कुछ भी दे रहे हैं, ultimately if you read the ingredients, see, सबसे बड़ा problem with the Indians, we never read the ingredients. More than 40% is only sugar. And what is doing sugar to us? Sugar is making sure कि हमारे बच्चे hyperactive हो जाए. Then we always complain कि बच्चे बहुत आजकल hyperactive हो गए, but कहीं ना कहीं हम लोग उनको खाना ही ऐसा दे रहे हैं. So बॉर्नविटा या माइलो या कुछ भी दे रहे हो, उसमें शुगर जा रही है, देन दूध में भी ऊपर से शुगर डाल रहे हो, देन यू आर मेकिंग श्योर कि आपके खाने में भी कहीं ना कहीं शुगर या गुड़ भी जा रहा है. एंड इन दैट बॉर्नविटा, माइलो, व्हाटएवर दे आर सेइंग, इट इज पैक्ड इन अ पैकेट, एंड वो उसकी शेल्फ लाइफ मोर देन 6 months होते हैं. तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, फूड कलर्स भी होते हैं, एंड व्हाटएवर क्लेम्स दे आर गिविंग कि ये विटामिन है, ये मिनरल है, ऐसा कुछ नहीं है. Vitamins and minerals only natural food can give, nothing else. Nature ने हमारा body बनाया है, so nature knows better than us, right? So I am a strict in that opinion that we should not give our kids any Milo Bournvita, और yes, females के irregular periods में Milo Bournvita का बहुत बड़ा हाथ है, for sure. ओके, सुपर. लेकिन बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई, अब बिना चॉकलेट दूध उनको नहीं पसंद आता है, बिना पीडियाश्योर का चॉकलेटी कलर. राइट, पर वो आदत किसने दी है? हमने. तो आदत तो हमने ही डाली है, सो हमें ही छुड़वानी पड़ेगी. डॉक्टर्स ही बोलते पीडियाश्योर बहुत अच्छा है, दो डालो. It's all money making industry, right? When they prescribe something, they get something out of it, right? And definitely there are a lot of researches about it. So वो childhood obesity करते हैं ये सारे powders. So rather than giving a balanced diet, we are giving unhealthy products to our kid, right? So stop giving products. And अगर आपके बच्चे नहीं मानते, उनको मेरे पास एक काउंसलिंग करवा दो, वो दूसरी बार छुएंगे भी नहीं, मेरी गारंटी. क्या बात है. अच्छा, ईशा शाह पूछ रही हैं, आई वाज ऑपरेटेड फॉर फाइब्रॉइड बिफोर 3 years, सो इज इट पॉसिबल टू रिपीट? एक बार ऑपरेट किया है तो क्या वापस हो सकता है? या इट्स रिकरेंट. फाइब्रॉइड्स हमेशा रिकरेंट है, बिकॉज रूट कोज को नहीं निकाला ना अपने जड़ से. सो एक बार निकाल दिया तो दूसरी बार होगा, दूसरी बार निकाल दिया तो तीसरी बार होगा.
अभी यूटेरस में है, नेक्स्ट ब्रेस्ट में भी हो सकता है, आपके गोल ब्लेडर में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट जैसे मैंने आपको समझाया कि ये छोटी सी रुकावट है, वो चैनल्स में से वो पास नहीं हो पा रहा है, सो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं, उसको तो आप स्टॉप ही नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो रिकरेंस हमेशा रहेगा ही, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन द रूट। अच्छा, ग्रोइंग गर्ल्स के लिए क्या जरूरी है खाना, मतलब what kind of nutrients are important for growing girls like the age 10 to 15, उनको क्या खाना चाहिए ताकि लाइक अभी एक आई फॉरगॉट द नेम, अभी एक जन का क्वेश्चन था जो हीमोग्लोबिन रिलेटेड, राइट? सो यस, ग्रोइंग एज में जब आप मेनार्के में चल रहे हो, जो पीरियड्स आने की शुरुआत होती है, या व्हेन यू आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द पीरियड्स, या पीरियड शुरू भी हो गए हैं, सो जिसको हम टीनेज फेज बोलते हैं, वहां पे यू नीड लॉट ऑफ मोर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, D3, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, so on and so forth. So nutrients की रिक्वायरमेंट पूरे लाइफ में होती है, बट लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, चाइल्डहुड में, फिर टीनेज में, एडल्टहुड में। सो न्यूट्रिशन तो हमें सारी जगह पे चाहिए, बट लाइक वी आर सेइंग कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे ईट द बैलेंस डाइट, और वहीं पे ही सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज टीनेज में उनको बहुत ज्यादा पैकेट फूड कंजप्शन चाहिए, बाहर पार्टी करनी होती है, दैट्स व्हाई पीसीओडी एंड पीसीओएस हो जाता है कोरोना यही ने एज में। सब रोक दिया है मैडम, कोरोना ने सब रोक दिया है, बाहर की बंद तो हो गई है। मम्मियां बहुत अच्छा अच्छा बना रही है ना घर पे, ट्रस्ट मी, मम्मियाँ कोरोना के भी टाइम से जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं ना, दे हैव द सेम कंप्लेंट कि लॉकडाउन से वजन बढ़ गया है, लॉकडाउन से वजन बढ़ गया है। So people are eating more at home because they don't have, I don't know what they are doing, right? So it's a, and Swiggy Zomato तो अपना काम बखूबी निभा रही है। Nice Right. one. So So Bhumi yeah. Shah is asking solution for sugar cravings. Hmm? Bhumi Shah is asking for solution for sugar cravings. देखो, शुगर क्रेविंग जब भी हो रहा है, अगर यू थिंक कि आपको स्वीट पसंद है, दैट इज फाइन, बट अगर इफ यू फील कि शुगर क्रेविंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, सो दैट इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जो स्पेशली आपको पोस्ट मील होता है। अगर अभी आप खाना खा के बस उठे ही हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरा खाना फिनिश ही नहीं होगा बिना स्वीट खाए या कुछ मीठा खाए, रात को 10 साढ़े 10 से 11 के बीच में, या लेट नाइट जब जाग रहे हो, तभी आपको मीठा खाने का मन हो रहा है, so it's all related with the nutrition imbalance, like you are not giving enough micronutrients to your body, or you are leading with the imbalanced lifestyle. So kahin na kahin sweet craving direct related hoti hai, but if you are asking what is the solution, so स्वीट क्रेविंग जब होती है, आप डेट्स खा सकते हो, आप फिग्स खा सकते हो, आप घर की बनाई हुई जैसे मिक्स सीड्स लड्डू है इस सीजन में खा सकते हो, रागी के लड्डू, राजगिरा के लड्डू, so there are lots of sweets which you can have. मेरे बच्चे एक ड्राई फ्रूट देख लेते हैं ना किसी भी चीज में, चाहे वो चॉकलेट भी हो, चॉकलेट डस्टबिन में जाती है सीधा। आई मीन नॉट इवन अ सिंगल ड्राई फ्रूट शुड बी देयर इन दैट चॉकलेट। See, it's not important to really give dry fruits to every kid. अगर वो उन लोग को नहीं पसंद है, definitely you can try different recipes, उनको पाउडर बना दो और फिर कहीं ना कहीं मिला दो अंदर, बट ऐसा नहीं है कि एक फूड ग्रुप नहीं खाया तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी। देन वी नीड टू गिव अ डिफरेंट रिप्लेसमेंट, कि पता ही है कि आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो वी नीड टू जस्ट मैनिपुलेट इट इन अ वे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो। पहले के जमाने में हर कोई थोड़ी ना ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर पा रहा था, अभी भी ड्राई फ्रूट्स नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, दे कैन हैव पीनट्स, they instead of walnut they can have a flax seeds, so there are lot of replacements, but हमें क्योंकि इतना सा ही पता है, तो we think नहीं ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कंपलसरी नहीं है, बैलेंस इज द की। ओके, सुपर। सो हेलो एवरीवन, आप लोग यहाँ पे आए हो, देख रहे हो, थैंक यू सो मच। उर्वी पटेल, हेलो एवरीवन, हेलो। आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। वी आर हियर फॉर 5 more minutes,
We are waiting for your question. Meanwhile, Pallavi Gupta ji is asking for 12 years old for height. What should we give a 12-year-old girl for height? देखो ऐसा स्पेसिफिक फूड कोई नहीं होता है, और आपको किसी ने अगर बताया ना कि ये खा लो हाइट बढ़ जाएगी, आपको फुद्दू बनाने का वो नुस्खा है, ठीक है। हाइट, वेट, एज के साथ बढ़ना, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, बट इट गोज ऑन द जेनेटिक्स आल्सो, कि आपके मम्मी पापा की हाइट कैसी है, इस हिसाब से उनकी हाइट ग्रो करेगी। डेफिनेटली यू थिंक के आपके और आपके हस्बैंड की जिस हिसाब से हाइट है और आपका बच्चा या बच्ची उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो it is related to malnutrition. Pure malnutrition can lead to imbalance of height and weight, right? So growth and development 18 years तक होता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बच्ची बैठी रहती है, right? So उसको बोलो कि फिजिकल एक्टिविटी करे, लाइफस्टाइल बैलेंस करे, एंड आप उसको हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खिलाओ जहाँ पे सारे विटामिन एंड मिनरल्स उसको मिल जाए, ताकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो उस हिसाब से होना शुरू हो जाए। उसको बोलो बहुत ज्यादा साइकिलिंग करे, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन, राइट? सो हाइट बढ़ानी है तो बैलेंस न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे, नॉट द माइलो एंड बॉर्नविटा विच वो एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना कि पहले बच्चा इतना था, माइलो पी पी के इतना बड़ा हो गया। Exactly. ऐसा नहीं होता है, राइट? पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, सो स्टॉप गेटिंग फूल्ड अराउंड। So Kavita Malvi is asking, ma'am, please give solution for tea cravings. It's been 3 months I didn't drink, and what time I can drink tea, because I like to drink it in evening time. So see, if you are a fan of tea, you can have a tea, no problem, right? So tea is not the issue. The issue is कि when you are taking tea with food, so सब लोग सुबह उठ के खाली पेट टी पीते हैं, that is the problem, क्योंकि वहां पे फिर बॉडी का pH imbalance हो जाता है, एसिडिकता बढ़ जाती है, there are a lot of other factors which happens। वो नहीं करो, खाने के साथ आप मत लो। इवनिंग में आपको अगर लेना है तो चाय के साथ आप चाय पी सकते हो, एंड यू कैन रिप्लेस योर व्हाइट शुगर विद द जैगरी पाउडर। सो एक प्रोडक्ट आता है जैगरी पाउडर विच इज अ नेचुरल, सो जैगरी पाउडर आप डालोगे तो भी आपकी चाय उतनी ही टेस्टी रहेगी, बट वो व्हाइट शुगर से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होगा। एंड फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ टी इज नॉट अलाउड, 1 to 2 cups of tea is fine, okay, so no problem। कविता जी, यू मे हैव द टी बट नॉट विद द फूड, ताकि फूड के न्यूट्रिशन आपको मिल जाए, ओके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। So make sure that you are having proper water intake because tea is highly dehydrating, okay, so dehydration हो जाता है टी से। पल्लवी गुप्ता जी पूछ रही हैं, क्या छोटे बच्चों को 12 साल के जो बच्चे हैं जिनको हाइट बढ़ानी है, उनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है? आपको लगता है उनको कैल्शियम ज्यादा दें हम? सारे न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है, सो डेफिनेटली कैल्शियम इज वन ऑफ देम, बिकॉज आपको पता है कैल्शियम के बारे में। But there are 144 nutrients यानी पोषक तत्व, 144 nutrients you need on daily basis to grow। So सिर्फ कैल्शियम नहीं, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है, बट ये कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, जिंक, ये सारे जो मिनरल्स है उनके रिक्वायरमेंट बहुत 140, ज्यादा है। राइट डॉक्टर रिद्धि? 140। और इसमें कहीं पे भी चॉकलेट नहीं आता, राइट? राइट? I think you are a big fan of chocolate, इसलिए आप No, अपने my बच्चे children को भी are माइलो और बॉर्नविटा की आदत दिलवा दी है। not my children। आप जैसे See, जैसे बात they कर रहे can थे have a chocolate। See, they can have a chocolate। जैसे मैंने मेरी डॉटर को सिखाया है, संडे इज अ कचरा डे, eat whatever hell you want to eat। हाँ, कचरा डे, okay। So if you ask my 7 years old daughter कि संडे को क्या बोला जाता है, for her it's a कचरा डे, so she will make a plan from Monday कि इस संडे को मैं क्या खाने वाली हूँ। But Monday to Saturday you need to give a, like, you know, balanced nutrition to your body, that's it, no here and there, okay। So for that you need to educate your kids, and वो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल होता है। मेरे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे लेके मम्मियाँ आती है कि नहीं सुनते हैं, हम जिस हिसाब से खिलाना चाहते हैं नहीं खाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला।
So starting from 5 years to लेके कौन सी भी एज तक they are at that level कि उनको समझ में आता है, बट वो मैकेनिज्म, वो स्किल्स न्यूट्रिशनिस्ट के पास होते हैं कि उनके साथ बैठ के फिर उनको समझाए, एंड वी कैन फिगर आउट द मिड वे फॉर श्योर. आपके बच्चों का चॉकलेट क्रेविंग या जो एक्सेसिव उनका जो इंक्लिनेशन है चॉकलेट की तरफ, आई बेट आप मुझे एक चांस दोगे, दे विल टर्न अराउंड लाइक एनीथिंग. So गीतिका शर्मा जी इज आस्किंग, मैम मुझे विटामिन्स की कमी बताई है डॉक्टर ने, क्या लेना चाहिए? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी? There are a lot of vitamins, right? So there are a lot Okay, of Geetika, vitamins. So vitamin A, B complex, C, D, E, K, H. Lot of vitamins are there. Again, balanced food. You need to go to a nutritionist and figure out. Kavita Malvi is asking, reason for so much hair fall? Hair fall, lot of root causes. अगर आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज है, अगर गंदगी इंटेस्टाइन में है तो हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है. आपके खाने में अगर इनफ प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन से ही हमारे बाल बनते हैं. अगर आप इनफ वाटर इनटेक नहीं करते हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है. अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो भी हेयर फॉल होता है. There are thousands of reasons for hair fall. We need to figure it out. Shilpa Thakrar is asking, oats are healthy? Absolutely healthy, but not that 10 rupees वाला पैकेट. Ready to eat नहीं. वो जो whole grains आते हैं 1 kg के पैकेट, ultimately oats are nothing but jaw. It is made out of jaw, ठीक है. तो jaw को पिचका के oats बना देते हैं. And oats are really healthy because उसमें है ना बहुत अच्छे fibers and nutrition profile उसकी बहुत अच्छी है. So yes, they are healthy. So Kavita Malvi ji is asking, ma'am dairy products PCOD में खा सकते हैं या नहीं? Dairy products किस में खा सकते हैं? PCOD के टाइम पे. PCOD किसी नहीं. I restrict strictly no dairy products in PCOD. The only reason is आजकल animals को hormones के injections दिए जाते हैं, and वो hormones आपके body में जाके और hormonal imbalance करेंगे. So no milk products at all except for buttermilk. You can have a buttermilk घर का बनाया हुआ, बाहर का अमूल का नहीं. आपको प्रिजर्वेटिव्स से कंप्लीटली दूर रहना है. प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर, प्लास्टिक, लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑल दैट थिंग. जितना आप ये सारी चीजों से दूर रहोगे, इजीली पीसीओडी रिवर्स हो जाएगा. Okay, we are going to take two more questions, just two more questions. Varsha Shinde, Okay. where is your clinic located? How to contact you? So 901-661 901-661 is my number. Okay, you can search me on the Motherhood and Midas Touch website. You can search me on my Insta, FB at the name of Dr. Riddhi Nanda, an Ayurveda nutrition consultant. I'm located at Science City in Motherhood and Midas Touch Hospital. Also, I'm available online. So I give full therapy food treatment online also. Great. So last question we are taking from Isha Shah. After corona disease, what kind of food is preferable? Why after corona disease? Okay, so from the recovery. All right. Yes, so corona की recovery के बाद or even during corona, the very important nutrient is the water or fluid. So दिन में 4 से 5 लीटर fluid is the highly recommended, because ये infection के stage में body बहुत dehydration में चला जाता है. You need to combine lot of fluids and water intake in your daily routine. आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है. प्राणायाम स्पेशली करो. प्राणायाम से बहुत जल्दी आपके लंग्स रिकवर हो जाएंगे. जस्ट बेसिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, all that thing. And balanced food खाओ. So make sure you are having enough carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals, everything coming from your food and not from the supplements I'm saying. Right? So vegetables, fruits पे ज्यादा focus करो. Fruit juices मत लो.
fruit लो, whole fruit लो. मूंग दाल का पानी है. Then there are a lot of different recipes which can give you the natural protein. So balanced diet after corona, but with a more of fluid, and restrict the milk and milk products for at least a month. Your body is not in the position to digest this dairy products. So don't go crazy on the milk and milk products. So my dear friend Kavita Osatwal is suffering from corona. So she's asking कि corona के time Oh, get well soon, Kavita. तो वो क्या खाए इस टाइम पे? She's asking. Lot of fluid, 5 liters of fluid minimum. मूंग दाल का पानी पियो, फ्रूट जूसेस लो. आप फ्रूट जूसेस ले सकते हो ड्यूरिंग कोरोना, बिकॉज आई नो योर बॉडी स्ट्रक्चर. अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट बंदा या बंदी है तो वो नहीं ले सकते. वेजिटेबल जूस लो. अभी इस टाइम पे आंवला आ रही है, फ्रेश हल्दी आ रही है. दीज आर ऑल इम्यूनिटी बूस्टर पैक्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, राइट. सो सुबह का जूस बनाओ, आंवला, हल्दी, स्पिनच, गाजर, बीट सब कुछ डाल के, राइट. उसमें एक ऑरेंज भी डाल दो. ये हो गया आपका हेल्दी जूस. दिन में 2 बार मूंग दाल का पानी ले लो. रात को खिचड़ी खाओ, ठीक है. पूरे दिन में आप जैसे राजगिरा का स्टफ पराठा है या रागी का स्टफ पराठा है, मूंग दाल का चिला है, ऐसी हेल्दी एंड पैक्ड विद द न्यूट्रिएंट्स चीजें खाओ, rather than having too much of wheat. Do not have too much of wheat. Only once a week or thrice a week. I mean once a day or thrice a week, because wheat है ना वो digestion में बहुत heavy पड़ता है. And avoid fermented food while you are dealing with the corona, because it's very heavy for the digestion. And yes, wheat को restrict करो, बाकी सारे grains को use करो, बाजरी, जौ, जुआर, रागी, राजगिरा, all that thing. दिन में 2 से 3 fruits खाओ, जल्दी से सो जाओ. That's it, right? And do not do physical exertion. Thank you so much, Dr. Riddhi Nanda, for sharing your knowledge with us. It was a Thank you so much. pleasure. Thank you so much, ma'am, for giving me this platform. It was indeed a pleasure to talk to all these people, and thank you guys for asking so many questions. अभी भी questions आए जा रहे हैं, लेकिन time आपको You can all drop these questions. You can all get back to me on my Insta FB page. I will love to answer all your queries, concern, or you can even call me. You know, Connect is the family to me. I have been a member since more than 2 years now, and I have told Naika ji that I'm never gonna give up on your membership. Give me a lifetime membership. Thank you so much. So I love this platform. You guys can call me anytime, no problem. I'll be happy to answer you all. Thank you. So thank you everyone for watching. If possible, Dr. Riddhi, can you write your Instagram and Facebook link in the comment section? For sure, I would do that. I would do that. Thank you so much, everyone. Time to sign off. See you again tomorrow. Bye-bye. Bye.